Hello students. So in the last video we have discussed the relation between verbal and non-verbal part of your communication and what benefits verbal communication and non-verbal communication, the combination of these two have. If you communicate with the effective ratio or a very stabilized ratio of verbal and non-verbal communication, your communication would be effective. So today in this video, we are going to know about the classification of non-verbal communication. What comes under the non-verbal communication? And the first one is kinesis, that is body language. Second is proxemics, space language, time language, para language, and sign language. So these classification are present there, and it has numerous number of things under themselves. So we are going to classify them and we are going to understand them with details explanation. So this material is only for you to understand what I'm going to explain. So just look at the material that has been written on the screen and just listen to the words that I'm speaking. The first one is kinesis, that is literally means, kinesis literally means body language, body movement. So body language or kinesis classifies itself into facial expression, eye contact, gestures, body posture, and appearance. Facial expression, as I've already told you in the last videos, that facial expression is a very important aspect of your communication. As you can see in this image, आप अलग अलग एक्सप्रेशन के थ्रू अपना इमोशन कन्वे कर सकते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, कंफ्यूजन, डाउट्स, डाउटफुल, डिस्गस्ट, व्हाटएवर यू आर फीलिंग, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपका इंस्टेंट रिएक्शन फेशियल एक्सप्रेशन पे जरूर होता है. आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इफ यू आर हैप्पी अबाउट दैट थिंग, वो हैप्पीनेस आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे दिखता है. इवन इफ यू ट्राई टू कंट्रोल इट, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो पीछे बैठकर बात कर रहे होते हैं. They crack jokes among themselves and they laugh about that. They cannot control the laughter that they have. कई बार होता है कि वो जोर से बोलते हैं ताकि पूरी क्लास के सामने वो बात जो रहे रख सके अपना, but still it does not, if like it does not able to, even sometimes the teacher is not able to control his or her laughter, but that does not mean that we are encouraging you to do that. That is just an facial expression that is not controlled. वो कंट्रोल नहीं की जा सकती है, वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है आपका. सो फेशियल एक्सप्रेशन इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्योंकि ये चीज जो होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, हमें क्यों इतना इफेक्टिव लगता है, हम इसे नाम दे दिया है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, बिकॉज यू कैन लुक एट समवन्स फेस एंड you can judge all the expression that the emotional display that is on the face of the person. बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती है जस्ट बाय लुकिंग एंड ऑब्जर्विंग द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन. और ये सारी चीजें ना ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए काम देता है, बल्कि आपको भी अपनी बातों पर किस तरह का कंट्रोल रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर यू टू कंट्रोल योर फेशियल एक्सप्रेशन. बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है उसमें. तो अगर आप उतना एफर्ट पुट ऑन कर सकते हैं, यू कैन convey any emotion that you want in front of your audience. You can convey, you can not convey, you can control your emotions in front of someone, क्योंकि इमोशनली आप कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं और उस चीज़ को क्लास में स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है. अपने टीम, आप अगर एक टीम मैनेजर हैं, आप एक टीम लीडर हैं, तो आपकी पोजीशन जो है लीडरशिप की, उसमें आप इमोशनल नहीं हो सकते. यू कैन नॉट शो योर इमोशंस टू द जूनियर्स, टू सबॉर्डिनेट्स, बिकॉज आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, आप में अगर डाउटफुल रहेगा, डिसीटफुल रहेगा, तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एंड दे विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली. सो समटाइम्स इट इज हेल्पफुल टू शो द एक्सप्रेशन एंड समटाइम्स इट इज हेल्पफुल टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन, योर फेशियल एक्सप्रेशन. सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह का आपका कम्युनिकेशन है, किससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, टू whom यू आर कम्युनिकेटिंग. इन सभी मैटर को जज करते हुए आपको अपना फेशियल एक्सप्रेशन शो करना है या कंट्रोल करना है. दैट आई बिलीव विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. उतना आपको समझ आ जाएगा जब आप एक्सपीरियंस करेंगे खुद, जब आप एक पर्सन ऑफ अथॉरिटी बन जाएंगे खुद, जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको ये समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि हर बार आपका इमोशन जो है शो करना जायज नहीं होता है, और हर बार आपके इमोशन को छुपाना
भी जायज़ नहीं होता है। समटाइम्स इवन अ फेक स्माइल कैन मेक समवन डे। अगर कोई मैनेजर है जिसका पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बट ही इज़ स्माइलिंग एंड टॉकिंग टू द पर्सन of their teams, other team members, so it gives them encouragement कि हाँ चलो सब ठीक है, they don't believe that something is wrong behind the picture। तो वो facial expression चाहे false ही क्यों ना हो, वो कई बार लोगों के लिए beneficiary हो सकता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत सारे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कीनली जज करते हैं, क्योंकि आपका फेस पे नर्वसनेस के टिक्स दिखाई देते हैं, उन्हें पसीना आना, you basically you cannot control your emotions when you hear a question। अगर आपको उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है आंसर करने में, तो वो डाउटफुल एक्सप्रेशन आपका जो है बता देता है आपके इंटरव्यूअर को दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस प्रॉपरली। they can encourage you, all the interviewers, they encourage the students by seeing their facial expression, they get to know that you are not able to answer that, or you are feeling doubtful about yourself, they encourage you to answer it। तो वो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हर एक फील्ड में अगर आप देखें तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर आई कॉन्टैक्ट। हम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है? जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, आप कितनी बार या कितनी देर तक आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। सी, आई कॉन्टैक्ट डज नॉट मीन स्टेयरिंग एट समवन, किसी को घूरना नहीं है आपको, बट आई कॉन्टैक्ट मीन्स दैट यू आर जस्ट लुकिंग एट द पर्सन हु यू आर टॉकिंग टू। अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है और आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे माइंड में, रिसीवर के माइंड में या स्पीकर के माइंड में ये डाउट हो जाता है दैट यू आर नॉट लिसनिंग टू द पर्सन। आपका ध्यान कहीं ना कहीं कहीं और है, या आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अपनी बात सुनने का। अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं लाइटली सब्टली दैट यू आर लिसनिंग टू द पर्सन, और ये आपके लिए भी हेल्पफुल है एज अ रिसीवर। एक्टिव लिसनिंग का ये एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आप अपने स्पीकर को देखें, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग एट द पर्सन हु इज टॉकिंग, it is very important, it creates a surrounding, an environment for your mind to concentrate on the words that coming out of the speaker's mouth। जो स्पीकर बोल रहा है उसकी बात पर ध्यान देना, उसकी बात को समझना, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हैं तो। एज अ रिसीवर भी और एज अ स्पीकर, ये आपके ऑडियंस को कंट्रोल करने का या अटेंटिव रखने का एक जरिया बन जाता है, क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट बनाते हैं किसी भी ऑडियंस के साथ, तो भले आपकी ऑडियंस 1 है या 100 है, दैट डज नॉट मैटर। इफ यू मेंटेन द आई कांटेक्ट ऑन मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, they will be concentrated, they will be attentive, they will know that you are looking at them, you can see that whether they are listening or not। तो ये मेंटेन का अटेंशन मेंटेन करने के लिए, कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज जेस्चर्स। जेस्चर इज ऑब्वियसली अ वेरी बेसिक थिंग जो हम अपनी लाइफ में बचपन से करते आ रहे हैं। किसी को अगर अगर अपने बगल में बैठाना है तो आप अपना सीट टैप करते हैं, नॉड करते हैं एवरी डे इन योर लाइफ व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन। तो ये सारी चीजें क्या है, जेस्चर्स ही हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जेस्चर एग्जिस्ट करते हैं। जेस्चर करने का मतलब होता है कि आप अपने बॉडी मूवमेंट से, ठीक है, फ्लिक ऑफ योर हैंड, रिस्ट मूव करना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपका अलग अलग टाइप का मैसेज जो है आपके रिसीवर को सेंड करता है। एंड इट समटाइम्स क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड समटाइम्स क्रिएट द नेगेटिव इम्पैक्ट। तो दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, पॉजिटिव इम्पैक्ट कब क्रिएट करता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी के साथ हैंडशेक किया, ठीक है, तो वो हैंडशेक आपको पता होना चाहिए, आपका इनिशियल कांटेक्ट होता है किसी भी प्रोफेशनल पर्सन के थ्रू, और ये बहुत ही प्रोफेशनल माना जाता है कि आप अगर एक गुड हैंडशेक करते हैं तो ये एक फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा बनाता है। तो ये गुड हैंडशेक का मतलब क्या होता है? अगर आप बहुत लाइटली उनके हैंड को ग्रैब कर रहे हैं, आपका जो ग्रास्प है, आपका जो ग्रिप है वो बहुत लाइट है, इट मीन्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और you are submissive, or you're not able to like you are not comfortable in the company of that person, you do not trust that person। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। सो लाइट ग्रैप्स या लाइट ग्रिप बहुत ही नेगेटिव मानी जाती है।
टाइट ग्रिप भी नेगेटिव मानी जाती है, क्योंकि टाइट ग्रिप का मतलब आप डोमिनेंस दिखा रहे हैं, आप अग्रेशन दिखा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि वो पर्सन जो है आपके अंदर दब दब के रहे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं नेगेटिव, बहुत लाइटली भी नहीं रखना है, बहुत टाइटली भी नहीं रखना है। एक फर्म ग्रैप्स का मतलब होता है अ फ्यू सेकंड्स के लिए आप उन्हें थोड़ा-सा स्क्वीज़ करिए एंड जस्ट लीव देम, एंड दैट गिव्स एन इंप्रेशन दैट यू आर ready to be an equal contributor in the conversation, like you are giving that person कि आप भी अपने तरफ से 100% दीजिए, and I would be also be giving 100% from my side। तो ये gestures जो होते हैं आपके everyday life में बहुत importance प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज योर बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर जो होता है बहुत ही सब्टल आर्ट होता है ये शो करने का कि आप उस पर्सन की बातों में कितने इंटरेस्टेड हैं। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी आजकल अवेलेबल हैं कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द पर्सन, लाइक समटाइम्स जब क्लास बहुत ही फुल रहता है, बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, 100-200 स्टूडेंट्स एक ही क्लासरूम में हैं, एंड यू आर एट द पोडियम, you are speaking to the students, you are addressing the students, so sometimes when they are not able to see you, कई कई बार ऐसा होता है कि आपको एक हायर स्टेज नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप विजिबल नहीं हैं तो आपके स्टूडेंट का पोस्चर जो होता है वो कई बार आपकी तरफ झुकने लगता है, बिकॉज दे वांट टू विजुअलाइज यू व्हाइल यू आर स्पीकिंग। वो आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा टिल्ट हो जाते हैं अपने सीट पर, ताकि वो आपको देख सकें, ताकि आपके साथ उनका आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रहे, ताकि उनका अटेंशन आप पे पूरी तरह बना रहे। एंड सेम वे वन ऑन वन भी आप किसी से अगर बात कर रहे हैं एंड दे आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक दैट यू आर टेलिंग, तो उनका हाथ इस तरह कई बार ऊपर आ जाता है और दे लीन इनटू द टेबल। तो ये सारे पोस्चर्स जो होते हैं, जो चेंज इन पोस्चर है कि आपके टुवर्ड्स जब पोस्चर जा रहा है उस पर्सन का, that means they are listening to you। Sometimes people would relax back at the chair, or they just open the mobile phone and they are scrolling through something while you are talking। तो ये सारा gestures जो है, ये सारा posture जो है दिखाता है कि आप उनके बात में बिल्कुल भी interested नहीं हैं। And all those things are very important if you want to have a good relation with that person। क्लाइंट मीटिंग के दौरान आप नहीं किसी के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या कोई मैसेज आ रहा है इंस्टेंटली आप उसको देख रहे हैं बार-बार। कीप योर फ़ोन इन साइलेंट व्हेन यू आर हैविंग अ मीटिंग विद समवन। टॉक टू दैट पर्सन गिविंग देम फुल अटेंशन, और आपका बॉडी पोस्चर ऑटोमैटिकली आपका सपोर्ट करेगा अगर आप अपने माइंड को कमांड करते हैं कि आपको अटेंशन देना है। द फिफ्थ वन इज अपीयरेंस। ऑब्वियसली अपीयरेंस मैटर्स। आप किस तरह अपीयर हो रहे हैं, किस तरह, फॉर एग्जाम्पल ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी से पहली बार जाते हैं मिलने के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप, तो आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं, आप क्लीन करके जाते हैं, लड़के शेव करके जाते हैं, लड़के अपने बाल अच्छे तरीके से बना के जाते हैं, दे डू मेकअप सो दैट, नॉट too much makeup but subtle makeup, so that they look beautiful, they dress up nicely in a formal wear, शूज उनके परफेक्ट होते हैं। ये सारा चीज क्यों जरूरी होता है? बिकॉज अपीयरेंस, योर अपीयरेंस गिव्स इम्पोर्टेंस टू, लाइक शोज इम्पोर्टेंस कि आप कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उस पर्सन को या उस कंपनी को। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप तैयार होके नहीं जा रहे हैं अच्छे से, इसका मतलब आपके माइंड में वो बैकअप प्लान की तरह है। वो कंपनी का जो प्रोफाइल है वो बैकअप प्लान है, आपने ऑलरेडी कहीं और अप्लाई किया हुआ है। दिस इज द सेकेंड और द लास्ट ऑप्शन फॉर यू टू गो देयर। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप तैयार होके नहीं जा रहे हैं, ढंग से फॉर्मली तैयार होके नहीं जा रहे हैं, तो ये शो करता है कि आपका किस तरीके का इंटरेस्ट होता है। प्लस ऑब्वियसली ऑल दोज थिंग्स मैटर इन अपीयरेंस इफ यू आर गोइंग टू सम प्लेसेस, लाइक आप नॉर्मल डे ऑफिस में किस तरह काम करने आ रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज आफ्टर अ while you get used to the culture that is around you, or in the environment of your company। but अगर आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, आप क्लाइंट मीटिंग में जा रहे हैं, या आप अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, यू वांट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ पीपल। ये क्यों जरूरी हो जाता है? आपको भी लगता है कि नहीं, आज प्रेजेंटेशन देना है, थोड़ा अच्छा लग के जाते हैं, थोड़ा अच्छे से फॉर्मल वेयर में जाते हैं। keep your face clean, keep all the things that you
even you use perfume a lot when you are in the presentation. तो ये सारी चीजें शो करता है कि आप उस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उस चीज का इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में समझ रहे हैं, एंड यू थिंक दैट you are ready to build a relation with that person or with that company or with that team client or anyone else. तो अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड इट स्पीक्स फॉर itself कि आप कितना इम्पोर्टेंस उस रिलेशन को दे रहे हैं. All right. So this was kinetics. Sorry, this was kinesis. That is your body movement or body language. And in the next video, we are going to talk about proxemics. Thank you so much.